Hello students, good morning. Students, today is 28th October 2020. In the last class I have taught to you about the recurring deposit accounts and fixed deposit accounts. Today I want to continue from multiple option deposit account that is related from the fifth type of the account. So here you will write point number 5th, multiple option deposit account. In the short form you can tell it MOD. Okay, so listen carefully. Firstly, as students, you have listened about the name of that type of the account, multiple option deposit account. Multiple option means जिसमें हमारे पास कई तरीके के ऑप्शन हो. Okay, so listen carefully. It is a combination of two or more accounts, either saving account, फिक्स्ड अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट विद करंट अकाउंट. इट मीन्स क्या, ये कॉम्बिनेशन किसका है? सेविंग अकाउंट का और फिक्स्ड अकाउंट का, या फिक्स्ड अकाउंट और करंट अकाउंट का. इट मीन्स फॉर एग्जांपल, आई वांट टू टेक वन एग्जांपल हियर. इफ द सेविंग अकाउंट इज लिंक्ड विद फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, अगर आपका सेविंग अकाउंट क्या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के साथ लिंक होता है, देन एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ मिनिमम बैलेंस फ्रॉम द सेविंग अकाउंट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. इट मीन्स अगर आपके सेविंग अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन है, वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन होने के बाद जो अमाउंट हमारी एक्सेस आती है, वो एक्सेस अमाउंट ऑटोमेटिक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी. और इन केस ऑफ द इनसफिशिएंट फंड्स, कभी आपको किसी की पेमेंट करनी है, यू हैव रिक्वायर्ड द कैश, सो एट दैट टाइम इन केस ऑफ द इनसफिशिएंट फंड, पेमेंट कैन बी मेड बाय ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट. जो आपकी पेमेंट होगी वो सीधा क्या होगा, अगर कुछ आपके शॉर्टेज आ रही है सेविंग अकाउंट में, सो फिक्स्ड डिपॉजिट की पेमेंट डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी? सेविंग अकाउंट में चली जाएगी और डायरेक्ट उससे पेमेंट हो जाएगी. इट मीन्स हियर सच टाइप ऑफ द अकाउंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड द टू टाइप्स ऑफ द बेनिफिट्स, और बोथ अकाउंट्स बेनिफिट, या तो सेविंग और फिक्स्ड की बेनिफिट बताया हमने एग्जाम्पल के थ्रू. सेम बेनिफिट इट कैन बी ऑल्सो गेट ऑन द बेसिस ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट विद करंट अकाउंट. Okay, so it is based on the multiple options. Okay, so here you will write it is a combination of two or more accounts. It is the combination of two or more accounts. It may link saving account with the fixed deposit account. Fixed deposit account to fixed deposit account or fixed deposit account with current account. ओके, यानी या तो ये सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट का कॉम्बिनेशन होगा. सो इन दिस अकाउंट द अकाउंट होल्डर कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ बोथ अकाउंट. सो हियर यू कैन राइट इट, इन दिस अकाउंट द अकाउंट होल्डर कैन enjoy the benefits of both accounts. Okay, clear? So here you will write the features. Okay, features of multiple option deposit account. Okay, so first you know about that this is the combination of two types of the account. So here you will write it is a combination of two or more type of accounts. दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें अकाउंट. ओके, देन सेकेंड पॉइंट, it enables the account holder
to earn higher interest on deposit, higher interest on deposits. Okay, and now third point you will also write about it. I have already taught you about the risk of the payment, so here you will add reduces the risk of dishonoring of a check in case savings account has insufficient fund. Saving account has insufficient funds. It means if at the time of the payment there is any shortage of any amount for the payment, so at that time, if that check has been paid with the help of the saving account, so at that time some amount has been transferred from fixed deposit to saving account and that payment will be cleared. Okay, dishonor means, here the new word you have got it, maybe in the accountancy you have also taught about it, dishonor of a bill. It has been also given in accountancy in bills of exchange chapter. So dishonor means when the amount of the check has not been paid, that is called dishonor. And in case of the bill, when the amount of the bill has not been paid, so that is called dishonor. For example, you want to pay any amount with the help of the check. You have given 10,000 rupees with the help of the check to any other person. Okay, but when that person has visited to your bank or that person has deposited your check in their account, due to insufficient balance the payment has not been made. जो भी पेमेंट है insufficient फंड के कारण नहीं हो पाई, सो एट दैट टाइम या किसी भी रीजन से पेमेंट नहीं हो पाई उस चेक को लगने के बाद बैंक में, सो एट दैट टाइम दैट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ द चेक. ओके, सो यही चीज़ है. अगर आपके क्या इनसफिशिएंट फंड के कारण रीजंस हैं, देयर आर द 250 रीजंस फॉर द डिसऑनर ऑफ अ चेक. कई रीजन होते हैं, 250 रीजंस होते हैं कि आपकी चेक क्यों डिसऑनर हो रही है. बट हियर ओनली द वन बेनिफिट यू कैन गॉट इट, योर चेक विल नॉट बी डिसऑनर्ड विद द रीजन इनसफिशिएंट फंड. Okay, so these are the benefits of multiple option deposit accounts. Clear, students? Now we'll listen about the students banking services. Now the types of the accounts has been finished. Now I want to tell to you about the banking services. Okay, so first listen. You know about that the primary functions of the bank are borrowing and lending of money. Besides these two main functions, a bank also offers various services to attract customers. Okay, you know about that. बैंक आपका क्या करता है, कैश भी डिपॉजिट करता है, उधार भी देता है. ओके, बोरिंग कर रहा है आपको. सो एट दैट टाइम देयर आर दैट इज बेस्ड ऑन द मेन फंक्शंस ऑफ एनी टाइप ऑफ द बैंक or any type of the financial institutions. But in case of the banking system, it offers many other services to attract the customers and compete with other banks. It means अगर आपको कई ऑफर्स, डिफरेंट टाइप्स के ऑफर्स दिए जाएंगे, सो द कस्टमर, यू एंड मी और एनी अदर कस्टमर वांट टू ओपन their account in that type of the bank, that bank will provide the maximum services to that customer. इट मीन्स बैंक क्या करेगा, आप वहीं बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना सुटेबल समझेंगे जो बैंक आपको प्रॉपर वे में अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा. सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्विसेज दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द बैंक. सो लिसन हियर वन बाय वन. ओके, फर्स्ट सर्विस. So here you can write here also. If you want to write it, so the various services. Here you will write the various services. The various services provided by banks are as follows. Okay, point number 1, bank draft or demand draft. Bank draft and demand draft. So first you will write it here about it. Bank draft is an order issued by a bank or any branch of the same bank to pay the specified amount to the person named in it. यानी बैंक ड्राफ्ट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है
ओके, एक ऑर्डर है जो बैंक इशू करता है और ये ऑर्डर दिया जाता है कि जिसका नाम वहाँ पर पेई की तरह पेबल पर्सन का नाम जहाँ मेंशन है उस पर्सन को उतनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाए. सो हियर यू विल राइट बैंक ड्राफ्ट. बैंक ड्राफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिमांड ड्राफ्ट. In the short form you can also tell it DD. Okay, so bank draft is an order issued by a bank on any branch of the same bank to pay the specified amount to the person named on it. ओके, जिसका नाम उसमें मेंशन होगा उस तरह उस पर्सन को उसकी पेमेंट कर दी जाएगी. ओके, सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फीचर्स. लुक हियर ऑल्सो. फीचर्स of a bank draft. Features of a bank draft. First point, here you let the issuing bank either accepts cash or withdraws money from customers account to issue बैंक ड्राफ्ट. ओके, यानी जो इशूइंग बैंक है जिसने पेमेंट करनी है किसी थर्ड पार्टी को, उसके अकाउंट से वो पेमेंट निकाल करके देन ड्राफ्ट को इशू कर दिया जाता है, ड्राफ्ट बनाया जाता है. ओके, द अमाउंट पेबल इज, सेकेंड पॉइंट, द अमाउंट पेबल इज रिटन ऑन द ड्राफ्ट. जो भी अमाउंट होगी, पेमेंट होगी, पेबल होगी, वो ड्राफ्ट पर लिखी होगी. थर्ड पॉइंट, द नेम ऑफ द इंडिविजुअल और the name of the individual और कंपनी, अकेला व्यक्ति है या कंपनी है, और एनी इंस्टीट्यूशन टू whom the amount is payable is specified on the draft. किसको आपको कितनी पेमेंट करनी है, ये बात, ये चीज़ें, ये सारी डिटेल बैंक ड्राफ्ट के ऊपर लिखी रहेगी. ओके. फोर्थ पॉइंट, इशूइंग बैंक टेक्स गारंटी of payment. Issuing bank takes guarantee of payment of the draft, comma, therefore draft is never dishonored. ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं होता, बिकॉज जो उसे इशू करता है वो गारंटी देता है इसकी पेमेंट की. ओके. फिफ्थ पॉइंट, बैंक कुछ इसमें चार्जेस भी लेता है. दैट चार्जेस आर कॉल्ड कमीशन. जब भी बैंक ड्राफ्ट टीडी बनाता है, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट बनाता है, सो बैंक हैज ऑल्सो द चार्ज सम अमाउंट ऑन द अमाउंट ऑफ द ड्राफ्ट. जितने अमाउंट का आपने ड्राफ्ट बनाया है उसमें कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, दैट इज कॉल्ड कमीशन. सो हियर यू लेट बैंक में चार्ज कमीशन फॉर issuing bank draft. Okay, commission for issuing bank draft. And last point, here you will write bank drafted always
बैंक ड्राफ्ट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? जब डिमांड होती है तब वो पेबल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सर्विस वाज बैंक ड्राफ्ट। नाउ द अनदर सर्विस इज बेस्ड ऑन द बैंकर्स चेक, बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर। ओके, बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर। रिमेंबर, लिसन स्टूडेंट्स, बैंकर्स चेक्स इज ऑलमोस्ट लाइक अ बैंक ड्राफ्ट। अभी आपने पिछला टॉपिक पढ़ा जब, तो उसमें आपने बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट पढ़ा। सो बैंकर्स चेक इज ऑल्सो एज लाइक द बैंक ड्राफ्ट एंड डिमांड ड्राफ्ट। देन व्हाट इज द डिफरेंस? लिसन, बैंकर्स चेक इज पेबल विद इन द टाउन। यानी क्या? बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर वो होता है जो आप अपनी सिटी के अंदर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। वाइल इन द केस ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट, इन द केस ऑफ द बैंक ड्राफ्ट, द अमाउंट ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट की पेमेंट आप क्या सिटी के बाहर भी ले सकते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस, ओके, बिटवीन द डिमांड ड्राफ्ट एंड बैंकर्स चेक। सो हियर यू राइट बैंकर्स चेक, बैंकर्स चेक is almost like a bank draft, full stop. It refers to that bank draft, it refers to that bank draft which is payable within the town। यानी ये वो बैंक ड्राफ्ट है जिसकी पेमेंट क्या आपको सिटी के अंदर, टाउन के अंदर रिसीव हो जाती है। क्लियर? सो नाउ यू विल राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ बैंकर्स चेक्स। फीचर्स ऑफ बैंकर्स चेक। सो फर्स्ट फीचर यू विल राइट अ बैंक issues a banker's check, a bank issues a banker's check on receipt of money from the customer। बैंकर्स चेक बैंक तब इशू करता है जब उसे कस्टमर से मनी या कैश मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट, a specified amount is payable, a specified amount is payable to a specified individual और कंपनी। एक स्पेसिफिक अमाउंट की पेमेंट हम क्या शो करते हैं, पेमेंट करते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन को या कंपनी को। सेम बेनिफिट रिलेट्स ऑन द डिसऑनर एज लाइक अ बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट विल नॉट बी नेवर डिसऑनर्ड। सो सेम बेनिफिट यू विल ऑल्सो गेट द banker's check also। So here you will write issuing bank guarantees the amount payable, thus a banker's check is never dishonored due to insufficient fund। अगर sufficient fund नहीं है, so as like a demand draft, that banker's check or pay order will not be dishonored। Clear students? Fourth point, it is used in case payee does not accept पर्सनल चेक। ये तब होता है जब पेई क्या पर्सनल चेक को एक्सेप्ट नहीं करता। एंड द लास्ट पॉइंट,
इट इज सिमिलर टू बैंक ड्राफ्ट, इट इज सिमिलर, ये हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, लास्ट पॉइंट जो हम यहाँ बता रहे हैं स्टार्टिंग में ही, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैंक ड्राफ्ट एंड बैंकर्स चेक. सो हियर यू राइट इट इज अ सिमिलर टू बैंक ड्राफ्ट but it can be payable only locally. It means ये लोकल बेसिस में आपकी सिटी लेवल में ही इसकी पेमेंट होगी. क्लियर स्टूडेंट्स?